सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पे हमने कल का सेशन क्विट किया था, यहीं से शुरू करेंगे। ओके, चलो रिवाइज हो जाएगा कल जो भी सीखा हमने। शो दैट द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर cannot be of the form 5q plus 2 and 5q plus 3 for any integer q। तो हम क्या शुरू करेंगे, हम बोलेंगे let a be any positive integer। Okay, then according to Euclid's division lemma, we know that a is equal to bq plus r, where yes, r is greater than equal to 0 and less than b। Yes, and now let b is equal to 5। यस, b इक्वल टू 5, तो r क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, इसमें से कुछ भी। यस, कुछ भी नहीं, सेम प्रोसेस फॉलो करो। 5 केसेस बनेगा। केस नंबर 1, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 4 और 5। सो चलो केस नंबर 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो जब r 0 होगा, सो व्हाट विल हैपन, वी से a इज इक्वल टू 5q plus 0, but we need a square, so what we will be doing is a square is equal to 25q square, which is nothing but 5 into 5q square। yes, by the way q है तो हम m से शुरू करेंगे। okay, we have to prove q ना, so we'll start with m, 25m square, which is nothing but 5q। yes, a square is equal to 5q, where q is equal to 5m square। See, this is my case 1. What is our case number 2? When r is equal to 1. So जब r 1 होगा तो a क्या हो रहा है? a is equal to 5m plus 1. a square is equal to 5m plus 1 का whole square, which is 25m square plus 2 5s are 10m plus 1, है ना। तो यहाँ से मैं लूंगा बच्चों 5 कॉमन, so 5 into 5m square plus 2m plus 1, which is nothing but 5q plus 1। a square is equal to 5q plus 1, where q is equal to 5m square plus 2m। if you don't write this also, you will lose out on half mark। okay, so make sure you don't miss out on any single step। yes, see now I'm sure everyone would feel कि यार ये तो बहुत easy है, फटाफट करना है ना। और अगर अभी भी ऐसा फील नहीं हो रहा है तो जस्ट ट्राई अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, तो वो फीलिंग आ जाएगी, है ना। क्योंकि अब वो इतना इजी है तो मार्क्स लूज नहीं करना है वहां पे, है ना। केस नंबर 3, r इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 5m प्लस 2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 2 5s are 10 2s are 20m प्लस 4, विच इज इक्वल टू, अभी ध्यान दो यार अच्छे से, है ना। what we will do is we will take 5 common from here, so ये आ जाएगा 5 into 5m square plus 4m plus 4, which is nothing but बच्चों 5q plus 4। yes, तो a square आ गया 5q plus 4, where q is equal to 5m square plus 4m। case number 4, where r is equal to 3, a is equal to 5m plus 3, a square is equal to 25m square plus 2 5s are 10 3s are 15, correct, 2 5s are 10 10 3s are 30, sorry, 30m plus 9। yes, 30m plus 9, see I am writing it like this, 25m square plus 30m plus 5 plus 4। बच्चों मैंने 9 को लिख दिया 5 plus 4, अब इसमें से मैं 5 को कॉमन निकालूंगा, है ना। तो ये मिलेगा 5, 5m square plus 6m plus 1 plus 4, this is nothing but a square is equal to 5q plus 4। yes, where q is equal to 5m square plus 6m plus 1। and the last case, case number 5, where r is equal to 4, a is equal to 5m plus 4, squaring both sides we get 25m square plus 2 5s are 10 10 4s are 40m plus 40।
16 plus 16 है ना. I will write this as 25m square plus 40m plus 15 plus 1 है ना. 5 का मल्टीपल्स चाहिए हमको, 5 का मल्टीपल्स. नाउ इसमें से आई विल टेक 5 कॉमन, सो मुझे मिलेगा 5 into 5m square plus yes 8m plus 3 plus 1 which is nothing but 5q plus 1 where q is equal to 5m square plus 8m plus 3 है ना. यहां देखो यस क्या हमको 5q प्लस 2 मिला कहीं पे? कहीं नहीं मिला. सी 5q प्लस 1 5q प्लस 4 5q प्लस 4 5q प्लस 1 है ना. सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैनॉट बी 5q प्लस 2. देखो है ही नहीं 5q प्लस 2, सो इट कैनॉट बी 5q प्लस 2. एंड देखो 5q प्लस 3 भी कहीं नहीं है, सो इट कैनॉट बी 5q प्लस 3 है ना. तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम केस 1 to 5 we can say that the square of any positive integer cannot be of the form 5q plus 2 and 5q plus 3. देखो 5q plus 2 भी नहीं आया, 5q plus 3 भी नहीं आया, आता ही नहीं है ना. so we cannot write it in the form of 5q plus 2 and 5q plus 3. क्या सब लोगों ने सॉल्व किया और क्या सब लोगों को समझ में आया? look here yes. अब ये भी सेम क्वेश्चन है अगला वाला. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैनॉट बी ऑफ द फॉर्म दिस और दिस. तो 6 केसेस बनेंगे, सॉल्व करते जाओ. ये भी कभी नहीं आएगा, ये भी कभी नहीं आएगा. अब ये तो पक्का वाला होमवर्क करना है ना. यस अगर किसी को फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने सिखाया, अब इसको सॉल्व करो. कितने क्वेश्चंस किए हैं यार, ऐसे बहुत क्वेश्चंस किए. ओके ये Yes, देखो sir. square of any odd integer is of the form 4q plus 1 for some integer q. Show that the square of any odd integer is of the form 4q plus 1. ओके देखो जरा, अब ऊपर का मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं. यस लेट b इज इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर क्या रहेगा 0 1 2 3. तो 4 केसेस बनेगा. अच्छा तो चलो 4 केसेस बनाते हैं है ना. केस नंबर 1 रिमाइंडर इज 0, सो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 4q प्लस 0. हमको चाहिए स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू सॉरी a स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर विच इज 4 इंटू 4q स्क्वायर है ना. 4 इंटू अच्छा हम लोग इसको 4 नहीं, अब हम इसको 2 के मल्टीपल्स में लिखेंगे क्योंकि हमको ऑड इवन का क्वेश्चन है ना. ये क्वेश्चन है ऑड इवन का, तो हमको बताना है ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर के साथ क्या होता है. ओके तो मैं इसको लिखता हूं 2 इंटू 8q स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2m. यस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2m. बच्चा ये तो इवन इंटीजर है. Yes, this is a even integer where m is equal to 8q square. अच्छा केस नंबर 2, केस नंबर 2 में r is equal to 1, a is equal to 4q plus 1, a square is equal to 16q square plus 2 4s are 8q plus 1 है ना. अच्छा अब देखो जरा यहाँ पे इन दोनों में से हम लोग को एक तो इवन और ऑड चाहिए है ना. तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा. 2 कॉमन लेके यहाँ मिलेगा 8q स्क्वायर प्लस 4q है ना प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2m प्लस 1. a स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 1. दिस इज एन ऑड इंटीजर. बच्चा जब देखो ऑड इंटीजर है राइट, a square is an odd integer correct, so it can be written in the form of 4q plus 1. yes है ना. show that the square of any odd integer, ये है odd integer, इसका square है ना is odd. समझ में आया सबको? yes so केस नंबर 3 में r is equal to ओके चलो ठीक है. अब ध्यान देना यार, एक चीज क्या मिस की हमने, क्या बोल रहे हैं देखो तो जरा. स्क्वायर ऑफ अ ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 है ना.
स्क्वायर जो है वो 4q+1 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर आप 4q+1 के फॉर्म में लिख सकते हो। अभी तो हमने सिर्फ बताया कि ये a स्क्वायर या a, पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा a इज एन ऑड इंटीजर। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ऐसे नहीं करना है ये सम आप। ओके, ऐसे नहीं करना है इसको। ओके, तो क्या करेंगे इसके लिए, पूरा लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दो कैसे, क्या वाई इज इट डिफरेंट। यस, वो बोल रहा है स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर यस इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 फॉर सम वैल्यू ऑफ q, मतलब q की कुछ वैल्यू ले लो यार आप, राइट, तो उसके लिए इस तरह से लिखना होगा। हाँ, तो सेम लिख देते हैं यहां पे, लेट a बी एनी ऑड इंटीजर या a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, टोटल ले लेंगे हम लोग, a बी एनी positive integer and according to Euclid's division lemma a is equal to bq plus r where r is greater than 0 and less than b। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं लेट b is equal to 4, r is equal to 0 1 2 3। ठीक है, अरे सेम रहेगा, सी सब कुछ सेम रहेगा, एक छोटा सा चेंज करेंगे उसमें इफ रिक्वायर्ड, वो भी इफ रिक्वायर्ड। सी r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 4q+0, पूरा इरेज नहीं करना चाहिए था मैंने, इज इक्वल टू 16q स्क्वायर या 16m लेना है, m लेंगे क्योंकि q प्रूव करना है ना, सो ये हो जाएगा 4m+0, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4 इंटू, मैं यहाँ पे 4m स्क्वायर लिख रहा हूँ विच इज नथिंग बट 4q। अब ध्यान दो, सिर्फ हल्का सा चेंज, इतना सा चेंज, राइट। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q है। व्हाट इज a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू मेरी आई 4q। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, नीचे कुछ नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही छोड़ रहा हूं। ओके, चलो r इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, है ना, r इज इक्वल टू 1 में आया, a इज इक्वल टू 4m+1, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 विच इज नथिंग बट, यहां से बच्चों में 4 कॉमन ले रहा हूं, 2 को कॉमन नहीं निकालना है, 4 को कॉमन निकालना है। ओके, 4 इंटू 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 विच इज नथिंग बट 4q+1। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यस अच्छा पहले तीनों केसेस खत्म कर देते हैं। a इज इक्वल टू 4m+2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 4 2 जार 8 2 जार 16m, यस 4 2 जार 8 8 2 जार 16 प्लस 4। यहाँ पे देखो अगेन मैं 4 कॉमन निकालूंगा तीनों में से इस बारी, सो क्या मिलेगा हमको, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 विच इज नथिंग बट 4q। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q और यहाँ पर r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4m प्लस 3। So a square is 16m square plus 4 2 जार 8 3 जार 24m plus 9। इसको मैं लिख दूंगा 16m square plus 24m plus 8 plus 1, है ना। So a square is equal to, इसमें से 4 कॉमन, 4m square plus 6m plus 2 plus 1 which is nothing but a square is equal to 4q plus 1। हाँ, है ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1। ये देखो स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म, स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1। वेरी गुड, तो हमने दो नंबर का स्क्वायर 4q+1 के फॉर्म में लिख दिया। अब हमको दोबारा से यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक ऑड इंटीजर है, तो इसके नीचे में दोबारा से लिखूंगा a इज इक्वल टू 4m+1, यस यस विच इज नथिंग बट 2 इंटू 2m plus 1 which is nothing but 2q+1, therefore a is odd। यार a odd है ये बताना पड़ेगा पहले, है ना।
ये a एक ऑड इंटीजर है और उसका स्क्वायर आई कैन राइट इट एज 4q प्लस 1। यस, ऐसा करोगे तो भी चल जाएगा। डायरेक्ट अगर आप लिख दोगे कि 4m प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर तो भी चलता है। सेम चीज यहां पर भी बच्चों, a इज इक्वल टू 4m प्लस 3। यस, ये एक ऑड इंटीजर है, ये बताना पड़ेगा आपको। देखो अभी तक किसी में भी ऑड इंटीजर इवन इंटीजर नहीं आया। हमेशा क्वेश्चन ऐसा था, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, सी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने सारे नंबर्स ले लिए। सी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने सारे नंबर लिए। पीछे के क्वेश्चंस में आ जाओ, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने लास्ट वाला जो मैं स्टेप बता रहा हूं वो कभी नहीं किया, राइट। लेकिन इस बार ना क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट है, इतना सा डिफरेंट है। तो जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आप पहले बता दो कि स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, बट बाद में बताना पड़ेगा कि ये एक ऑड इंटीजर है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों 4m प्लस 2 प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन लूंगा, ये आ जाएगा 2m प्लस 1 प्लस 1 विच इज 2q प्लस 1। देयरफॉर यहां पर भी a एक ऑड इंटीजर है और ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है दैट इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, हेंस ट्रू, है ना। यस, यहाँ पे भी बताना पड़ेगा आपको। सी a इज इक्वल टू 4m, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2m विच इज 2q। यस, तो ये एक इवन इंटीजर है। यस, तो यहाँ दोनों स्टेप करना पड़ेगा। ऑड इवन भी बताना पड़ेगा आपको कि ए ऑड है या इवन है, और उसका स्क्वायर कौन से फॉर्म में है ये भी बताना पड़ेगा, राइट। और ये देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4m प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2m प्लस 1 विच इज 2q। तो यहाँ पर भी a इज एन इवन इंटीजर, राइट। तो देखो जब a जब जब ऑड है इट कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, a यहाँ पे भी ऑड है इट कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म। तो इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर इस फॉर्म में है, ठीक है, कब है, जब ऑड इंटीजर है। तो देखो इस फॉर्म में तो है, कब है, जब वो एक ऑड इंटीजर है, तो हमको उसको ऑड भी बताना पड़ेगा और 4q प्लस 1 भी बताना पड़ेगा। क्या सब लोगों को समझ में आया पे? These questions are little different now, थोड़े हल्के हल्के डिफरेंट है ना। अभी तक का जो पैटर्न था मेजरली वो आता है एग्जाम में, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस भी आपके स्कूल एग्जाम में आते हैं। ओके, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, n एक ऑड इंटीजर है, मतलब क्या, मतलब n इज इक्वल टू 1 3 5 7 yes, that is n. Show that n square minus 1 is divisible by 8, n square minus 1 is divisible by 8। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे कि 8 से डिविजिबल है। ओके, सो पहले मैं लिखूंगा लेट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 लेंगे, है ना। तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखो 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 0। इज 0 डिविजिबल बाय 8? यस, आई कैन राइट इट एज 0 into 8 plus 0। यस, है ना। 0 is equal to divisor into quotient plus remainder। let n is equal to 2, तो n square minus 2 is, sorry, n is equal to 2 नहीं हो सकता, 3, है ना, odd integer। so n square minus 1 which is nothing but 3 का square minus 1 which is equal to 8। 9 minus 1, so I can write this as 1 into 8 plus 0। so this is also divisible by 8। very good, let n is equal to 5, so n square minus 1 is equal to 5 square minus 1 which is 24। अरे वाह, this is also divisible by 8। 3 into 8 plus 0, रिमाइंडर 0 आया मतलब divisible by 8। और एक और नंबर ले लेंगे बच्चों 7, है ना। n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 49, 7 square minus 1 which is 48, that is 6 into 8 plus 6 into 8 plus 0, है ना, dot dot dot। from the above steps, from the above, yes, steps, we can say that we can
say that yes, n square minus 1 is divisible by 8 if n is equal to odd number. अगर n एक ऑड नंबर है तो देखो n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा 8 से डिविजिबल होता है। ऐसे के ऐसे लिख के आना है एग्जाम में। यस, क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी? यस सर। इसको सॉल्व करने Yes, का एक Yes, जनरल sir. तरीका भी है। इसको सॉल्व करने का एक जनरल तरीका भी है, बट फिलहाल मैं वो नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। फाइन, लेकिन आप अगर एग्जाम में ये भी करके आओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देखो सिमिलर तरीके का। प्रूव दैट one and only one out of n, n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। मतलब क्या बोल रहे हैं? तीन नंबर है बच्चों हमारे पास, कोई भी तीन नंबर n, n plus 1, n plus 3, ऐसे नहीं, सॉरी, n, n plus 2 and n plus 4। मतलब क्या? एक एग्जांपल देता हूं मैं। लेट n is equal to 5। n को, अच्छा मैं काफी सारे एग्जांपल्स दे देता हूं पहले, फिर इसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, लेट्स जस्ट टेक फर्स्ट एग्जांपल। लेट n इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले लो 2, कोई भी नंबर ले लो। ओके, चल तो n इज इक्वल टू 2 हो गया, वेरी गुड। n प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 विच इज 4 एंड n प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? n प्लस 4 दैट इज 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। देखो 2, 4 और 6 में से सिर्फ 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा प्रूव करके बताओ कि इन तीनों नंबर में से सिर्फ एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल, बस एग्जांपल्स दे रहा हूं, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये आपको समझाने के लिए। लेट n इज इक्वल टू, आप कोई भी नंबर बोलो, कम ऑन टेल एनी नंबर, जल्दी से कोई भी नंबर। 6 5 कोई भी ले लो यार, आपने बोला नहीं जल्दी, मैंने ले लिया। सो n इज इक्वल टू 5। अच्छा, n प्लस 2 कितना होता है? n प्लस 2 इज 5 प्लस 2 विच इज 7 एंड n प्लस 4 विच इज नथिंग बट 5 प्लस 4 विच इज 9। देखो इन तीनों नंबर में से सिर्फ एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप n की कुछ भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल लेट n इज इक्वल टू 100। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 100। ठीक है, n प्लस 2 इज इक्वल टू 102 हो जाएगा और n प्लस 4 इज इक्वल टू 104 हो जाएगा। इन तीनों नंबर में से बच्चों सिर्फ ये वाला नंबर है देखो जो 3 से डिविजिबल है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? वो बोल रहा है कि ऐसे तीन नंबर है ये n, n प्लस 2, n प्लस 4, प्रूव करके बताओ कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये तो हमने एग्जांपल लिए यार, ऐसे कितने एग्जांपल ले सर लेते n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कुछ भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हाँ वही मतलब। ओके, सो यार देखो सीन ऐसा है कि आप कितने नंबर ले लेके आप एक्सप्लेन करोगे ना ये चीज, इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट? तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए? हाउ डू वी राइट कि इनमें से सिर्फ एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा? एनीबॉडी जस्ट थिंक एंड टेल मी व्हाट डू यू फील, कैसे किया जाए इसको? रिमाइंडर से होंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। सी हमको नहीं पता, कोई भी हो सकता है ना, जैसे एग्जांपल्स पे ध्यान दो बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में यस n प्लस 4 3 से डिविजिबल है ना? n प्लस 4 3 से डिविजिबल है। इस वाले एग्जांपल में देखो n प्लस 2 3 से डिविजिबल है ना? अगर मैं बच्चों n की वैल्यू ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 33, तो इसमें तो सीधा n ही 3 से डिविजिबल है। सी मैं लिखता हूँ n प्लस 2 तो ये होगा 35, n प्लस 4 तो ये हो जाएगा 37। सी ओनली दिस इज डिविजिबल। तो कभी n प्लस 4 डिविजिबल रहेगा 3 से, ओके, कभी कभी n प्लस 2 डिविजिबल रहेगा 3 से, और कभी n खुद डिविजिबल रहेगा 3 से, है ना? ये तो डिपेंड करेगा कि आप n की वैल्यू क्या लेते हो।
क्या ये एग्जांपल समझ में आ गया सबको? तो मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको, राइट? तो अब सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा वन बाय वन कि चलो लेट n इज डिविजिबल। मान लो n इज डिविजिबल। ध्यान देखो बच्चों, मैं इसको 3 केसेस में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, मैं टॉप में बाद में कुछ लिख दूंगा, पहले यहां ध्यान दो। हमको नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है और हमको नहीं पता कि कौन डिविजिबल होने वाला है, तो मैं बोलूंगा लेट n बी डिविजिबल बाय 3। लेट n 3 से डिविजिबल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 3q? हाँ कि नहीं? अगर n 3 से डिविजिबल है तो बच्चा n डिवाइडेड बाय 3, कुछ तो नंबर मिलना चाहिए मुझे, तो मैंने बोल दिया q। वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान देना, लेट n बी डिविजिबल बाय 3, सो n इज इक्वल टू 3q। ओके, n 3 से डिविजिबल है। अब देखो तो जरा n प्लस 2 कितना होगा? n प्लस 2, n प्लस 2 इज नथिंग बट 3q प्लस 2। n इज इक्वल n प्लस 2 क्या है? 3q प्लस 2। यस। और अच्छा, 3q प्लस 2 को 3q प्लस 2 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। 3q प्लस 2 को मैं बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो क्या 3q प्लस 2 3 से डिविजिबल होगा? नहीं। सी, 3q प्लस 2 मतलब रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 2 आया। देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यस, इफ अ नंबर is divided by 3, then by Euclid's division lemma a is if a number a लिख लेता हूँ हाँ यहाँ पे, if a number a is divided by 3, then by Euclid's division lemma we have a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than 3। मतलब r की वैल्यू होना चाहिए या तो 0 या तो 1। यस, एक सेकंड ना, if normally लिख दो, if any positive integer, yes, let a be any positive integer, then by Euclid's division lemma ऐसा ऐसा होने वाला है। ओके, इस बार मैं बोलूंगा लेट b इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबल कर रहे हैं हम लोग, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 3 से डिविजिबल किया तो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इफ द रिमाइंडर इज 0, द नंबर इज डिविजिबल, बट इफ द रिमाइंडर इज 1 एंड 2, नंबर डिविजिबल होगा क्या? नहीं। ये तो बेसिक सेंस है ना यार, कोई भी नंबर को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 4 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 1, मतलब इट इज नॉट डिविजिबल, है ना? तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? हियर द रिमाइंडर इज 2, दिस इज द रिमाइंडर, है ना? यस, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया। टेक n प्लस 4, n प्लस 4 क्या होने वाला है? n प्लस 4 इज इक्वल टू 3q प्लस 4। बच्चा n की वैल्यू 3q है ना, तो 3q प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 3q प्लस 3 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 3 इंटू 3 कॉमन निकाला पहले दोनों में से, तो यहाँ बचेगा q प्लस 1 प्लस 1, करेक्ट, विच इज नथिंग बट बच्चों 3m प्लस 1। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 1, है ना? मतलब अगर ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा और ये भी डिविजिबल नहीं होगा, करेक्ट। अगर n डिविजिबल है तो n प्लस 2 भी डिविजिबल नहीं है, n प्लस 4 भी डिविजिबल नहीं। अच्छा देखो सेकंड केस, केस नंबर 2, लेट n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3, is divisible by 3। n plus 2 3 से डिविजिबल है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, n plus 2 is equal to 3q। if a number, n plus 2 क्या है? एक नंबर है। अगर n plus 2 डिविजिबल है 3 से, अगर n plus 2 3 से डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूं n plus 2 is equal to 3q।
वेरी गुड। तो n क्या हो जाएगा फिर देखो, n n will be equal to 3q minus 2, 3q minus 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 3q, यस। अच्छा चलो यहाँ पे रिमाइंडर है ना, कुछ तो रिमाइंडर आ रहा है, तो छोड़ दो उसको, खत्म हो गया वो यहाँ पर। मतलब कैन आई ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, कैन आई राइट इट एज -3 -5 + 3, -5 + 3 के फॉर्म में भी मैं उसको लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो इसको मैं लिख दूंगा, ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, n इज इक्वल टू 3q minus 2। मतलब कुछ तो रिमाइंडर आ रहा है ना। जीरो रिमाइंडर है क्या, नहीं, जीरो रिमाइंडर नहीं है। तो क्योंकि जीरो रिमाइंडर नहीं है, हम बोल देंगे कि ये तो डिविजिबल नहीं है भाई। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एवरीबडी, कोई डाउट है तो पूछो अभी। यस सर, समझ रहे। पक्का? सर सब नंबर्स के लिए ऐसा ही होगा मेथड, हाँ, सब नंबर्स के लिए। देखो एक और समय आ गया, डिविजिबल बाय 5, 7। अच्छा n+4 चाहिए मुझे दूसरा नंबर। n+2 तो हमने अज्यूम किया कि डिविजिबल है, यस। तो n+4 इज इक्वल टू 3q प्लस, अच्छा n+4 को देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, n+2 + 2, चलेगा क्या? n+4 को मैंने लिखा n+2 + 2, 4 को लिखा 2 + 2। बच्चा n+2 की वैल्यू क्या है, 3q, दिस इज 3q + 2। यहां देखो रिमाइंडर 2 आ गया, है ना। देयरफॉर n and n+4 is not divisible by 3। अगर n+2 3 से डिविजिबल है, तो बाकी दोनों नंबर 3 से डेफिनेटली डिविजिबल नहीं होंगे, है ना। अब मैं अज्यूम करता हूं कि लेट n+4 इज डिविजिबल बाय 3, n+4 3 से डिविजिबल है। तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, n+4 इज इक्वल टू 3q। हाँ, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो मैं उसको 3q लिख सकता हूं। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, 3q minus 4, 3q minus 4, यस। अब रिमाइंडर तो ऐसा आ गया, आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिख दो, 3q -3 -1, कोई बात नहीं। तो 3 into q -1 विच इज 3m -1। यार रिमाइंडर आ रहा है ना कुछ तो। आप बोलोगे प्लस, तो मैं प्लस ऑफ -1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो n भी डिविजिबल नहीं है। और n+2 देखो तो जरा, यस, n+2 क्या है, n+2 इज नथिंग बट n+4 -2, yes, n+2 is equal to n+4 -2, which is nothing but 3q minus 2। so n and n+2 is not divisible by 3। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर n डिविजिबल है तो ये दोनों डिविजिबल नहीं है, अगर n+2 डिविजिबल है तो ये दोनों डिविजिबल नहीं है, और अगर n+4 डिविजिबल है तो ये दोनों डिविजिबल नहीं है। मतलब तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा। सर हाँ, सर मुझे सेकंड केस में डाउट है, लाइक इवन दो हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक इंटीजर जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और उसके साथ 2 ऐड हुआ है, तो वो नहीं हो सकता ना 3 से डिविजिबल। तो हम अज्यूम करके फिर कैसे प्रूव कर सकते हैं कि n। हीरो ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। देखो मैं इंटीजर की वैल्यू लेता हूं बच्चा 4, मैं इंटीजर की वैल्यू, मैं बोल रहा हूं कि इंटीजर की वैल्यू ले लो आप 4। तो देखो 4 + 2 इज डिविजिबल, 4 + 2 6 होता है ना। सर लेकिन 3 क्यों हमने लिया है ना n का वैल्यू, उसके लिए मैं पूछ रहा था। बेटा n+2 इज इक्वल टू 3q लिया है हमने, n+2। ओके सर, मतलब वो जो तीनों एग्जांपल पूछे उसका एक कॉमन वैल्यू 3q है, मुझे लगा सिर्फ हाँ, n का देखो वैल्यू 3q जो था। नंबर 3 से डिविजिबल होगा उसका 3q हो जाएगा। देखो यहाँ यस सर। n+4 3q से डिविजिबल है, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 into 2, दैट इज 3q। यहाँ पर यस मैं सर। 9 को लिख सकता हूँ 3 into 3, विच इज 3q। यहाँ देखो n+2 है 102, तो 102 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 3 34, यस। यहाँ पर यस सर। 33 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 into 11
सी यहाँ पर n को हमने लिखा 3q के फॉर्म में, यहाँ n+2 को लिखा 3q के फॉर्म में, और यहाँ n+4 को लिखा 3q के फॉर्म में, राइट? ओके, समझा सर। सर ऐसा कोई भी नंबर आ सकता है जैसे तो बाकी 5। दोनों डिविजिबल नहीं है। अगर n+2 डिविजिबल है तो बाकी दोनों डिविजिबल नहीं है, और अगर यस सर। n+4 डिविजिबल है तो बाकी दोनों डिविजिबल नहीं है, मतलब तीनों में से कोई एक ही नंबर डिविजिबल रहेगा। ओके सर, एक्चुअली मैंने कॉमन वैल्यू n का 3q ले लिया था, तो उसके लिए मुझे लगा एक सेकंड कि n+2 मतलब 3q+2 आप बताए थे, उसके लिए नहीं, तो कंफ्यूज। हमने बोला है n+2 इज डिविजिबल, मतलब n+2 इज अज्यूम कर दिया है हमने स्टार्टिंग से। या। ओके, थैंक यू सर, अच्छा समझा। चलो एक और एग्जांपल देखो, डोंट वरी, प्रूव दैट। अच्छा सेम वाला बता देता हूँ पहले। ओके, यहां ध्यान देना। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+4, n+8, n+12 एंड n+16 इज डिविजिबल बाय 5। इन सब में से कोई एक ही सिर्फ 5 से डिविजिबल होता है, इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। 5 नंबर है, 5 में से सिर्फ एक नंबर 5 से डिविजिबल होगा, है ना? क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, एनीबॉडी? पहले हम लेंगे पहला नंबर, यस, कि पहला नंबर 5 से डिविजिबल, फिर प्रूव करेंगे कि अगर ये डिविजिबल है तो बाकी डिविजिबल नहीं होंगे, है ना? तो अच्छा सर पहले n का वैल्यू 5q ले सकते हैं ना? हाँ, देखो पहले मैं बोलता हूँ लेट b इज इक्वल टू 5। अगर b 5 है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिमाइंडर क्या क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 0, आई मिस्ड 2, 0 1 2 3 4, ये रिमाइंडर आना चाहिए, है ना? यस सर। अब मैं यहाँ एक और सेंटेंस लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। यस, इफ द number, if any number is divisible by 5, divisible by 5, then the remainder is 0। if the remainder is not 0, वो 5 से divisible नहीं होगा। अच्छा, तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ let n is equal to 5q, मतलब let n is divisible by 5। n ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ओके। तो फिर n+4 क्या होगा बच्चों? n+4 होगा 5q+4, ये देखो रिमाइंडर इज 4, है ना? सिंपल। अच्छा बच्चा n+8 क्या होगा? n+8 को मैं लिखूंगा n+5, सॉरी, n+8 को मैं क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू 5q है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5q+8, विच इज नथिंग बट 5q+5+3, विच इज नथिंग बट 5 कॉमन निकाला, यहाँ पे आया q+1+3, विच इज नथिंग बट 5m+3। देखो रिमाइंडर क्या आया? 3, है ना? तो जब n+8 लिया तो 3 रिमाइंडर आया, वेरी गुड। तो ये भी डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। n+12 ले लो, तो n की वैल्यू क्या है? 5q, 5q+12। बच्चा इसको मैं लिखूंगा 5q+10+2, विच इज नथिंग बट 5 इंटू q+2+2, विच इज नथिंग बट, थोड़ा बड़ा जा रहा है ना, ओके। सो यहां मैं लिखूंगा, देखो n+12 इज इक्वल टू 5m+2, रिमाइंडर कितना है? 2। देखो n+12 एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसको जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 2 आया, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। यस, फिर n+16 है, तो n+16, n के बदले n इज इक्वल टू 5q है, सो 5q+16, इसको मैं लिखूंगा 5q+15+1, विच इज नथिंग बट, इसमें से मैं 5 कॉमन निकालूंगा, q+3+1, विच इज 5m+1, रिमाइंडर आ गया 1, हेंस नॉट डिविजिबल, है ना? तो अगर n इज इक्वल टू 5q डिविजिबल है तो बाकी कोई भी डिविजिबल नहीं है। ये तो हुआ हमारा केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 2 अगले पेज पे सॉल्व करता हूं। मैं बोलूंगा लेट n प्लस, क्या है दूसरा, n+4, लेट n+4 इज डिविजिबल
is divisible by 5. अगर n plus 4 5 से डिविजिबल है तो क्या मैं लिख सकता हूं n plus 4 is equal to 5q? हाँ लिख सकता हूं। वेरी गुड। अब अगला नंबर क्या चाहिए हमको? n चाहिए। n को चेक करो तो जरा। n is equal to 5q minus 4। कुछ तो रिमाइंडर आया। हाँ दूसरा नंबर चाहिए प्लस 8। तो इसको मैं लिखूंगा, ध्यान देना, इसको मैं लिख रहा हूं n plus 4 plus 4, है ना। n plus 4 की वैल्यू क्या है? 5q। इसको मैं लिखूंगा 5q plus 4। बच्चों रिमाइंडर है 4, हेंस नॉट डिविजिबल, है ना। फिर मुझे चाहिए n plus 12। n plus 12 को मैं लिखता हूं n plus, ध्यान दो, n plus 4 plus 8 चलेगा। n plus 4 plus 8। n plus 4 की वैल्यू क्या है? 5q plus 8 which is nothing but 5q plus 5 plus 3 which is nothing but, यहां से 5 कॉमन निकाला, q plus 1 plus 3 5m plus 3, रिमाइंडर क्या आया? 3, है ना। सो आई कैन राइट दिस नंबर एज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर 3 आ गया, करेक्ट। अच्छा अगला नंबर क्या है? n plus 16। n plus 16 को मैं लिखूंगा n plus 4 प्लस, ये क्या है? 16 12, करेक्ट। सो आई विल राइट दिस n plus 4 की वैल्यू क्या है? 5q plus 12 which is nothing but 5q plus 10 plus 2। इसमें से 5 कॉमन निकाला, q plus 2 plus 2 which is nothing but 5m plus 2। 2 is the remainder, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इतने नंबर्स में से अगर ये वाला डिविजिबल है तो बाकी कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। ये हुआ केस नंबर 2, ये हुआ केस नंबर 2। अब अगला सर आपने नंबर, इसके पहले इसमें क्या किया स्टेटमेंट में n plus 4 वाला? n plus 4 is 5q, एक बार वो वापस बता देना। कौन सा वाला? कौन सा? ये सर जो पहला स्टेटमेंट है n plus 4 is equal to 5q, एक बार थोड़ा ब्रीफ में समझा दो ना। अरे बेटा n plus 4 अगर 5 से कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, जैसे 20 एक नंबर है, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो कैन आई राइट इट एज 5 into 4? यस और नो? 20 यस को सर। क्या मैं लिख सकता हूँ 5 into 4? इट इज डिविजिबल, यस सर। है ना। 5 से डिविजिबल है तो 5 into 4। 25 is divisible by 5, तो कैन आई राइट इट एज 5 into 5? 5q के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो n plus 4 कोई तो एक नंबर है एंड इट इज डिविजिबल बाय 5, तो कैन आई राइट इट एज 5q? पक्का? यस सर। तो वही लिखा है। क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ बच्चों, कम ऑन टेल मी। सर वो सेकंड स्टेप n is equal to 5q minus 4 वो n नहीं is equal to 5q minus 4 सेकंड स्टेप। हाँ हाँ ये वाला हाँ, n is equal to 5 हाँ सर। minus 4। ओके हाँ सर ये समझा नहीं, मतलब n plus 8 में हमने ट्रांसपोज नहीं किया था तो अच्छा। अरे देखना, यहाँ तो हमको सिर्फ n की वैल्यू चाहिए ना, n की वैल्यू चाहिए। सी पहला नंबर n है। देखो यहाँ पे नंबर्स क्या है इस पे भी तो ध्यान दो बच्चों। हमने क्या बोला? हमने बोला n plus 4 इज डिविजिबल, तो हमको बताना रहेगा कि n डिविजिबल नहीं है। n plus 4 अगर डिविजिबल है तो n डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हमको n इज इक्वल टू 5q लिखते आता है क्या? नहीं आता है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 5q minus 4, है कि नहीं? 5q minus 4, करेक्ट। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, अगर और भी डिटेल में समझाओ तो। दिस इज नथिंग बट 5q minus 5 plus 1 which is nothing but 5 into q minus 1 plus 1 which is 5m plus 1। देखो जब मैं n को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आता है, तो 1 रिमाइंडर आता है, therefore it is not divisible। n is not divisible प्रूव करना है मुझे। सोम अब समझ में आया? यस सर। है ना। अच्छा अगला देखो, और केसेस देखो आप, और केसेस देखो। n इज इक्वल टू, अच्छा लेट
n plus 8 is divisible by 4, divisible by 5, divisible by 5। अच्छा ये एक ही क्वेश्चन है, हाँ, इतना बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, राइट। लेट n plus 8 is divisible by 5, है ना। तो अगर n plus 8 डिविजिबल है तो बच्चों कैन आई से n plus 8 is equal to 5 cube। If a number is divisible by 5, then I can write it as 5 cube। वेरी गुड। अब देखो तो जरा पहला नंबर n, n डिविजिबल है क्या, आपको ये चेक करना है। ओके, तो n क्या हो जाएगा, देखो ये 8 को यहां लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 8, है ना। यस सर, समझ मैं गया। इसको लिख सकता हूँ 5 क्यूब, ये 8 को मैंने लिखा माइनस 10 प्लस 2, माइनस 10 प्लस 2 विच इज नथिंग बट, यहां से 5 कॉमन निकाला, q माइनस 2 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 5m प्लस 2। देखो मतलब जब मैं n को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलता है 2, है ना। सो n इज नॉट डिविजिबल, यस, बाय 5। ओके, दूसरा वाला नंबर ले लो, n प्लस 4 एक नंबर है, n प्लस 8 डिविजिबल है, n डिविजिबल नहीं है, n प्लस 4। अच्छा n प्लस 4 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, है ना। n प्लस 4 को मैं लिखूंगा n प्लस 8 माइनस 4, चलेगा क्या, n प्लस 8 माइनस 4, या n की वैल्यू, n क्या है यहां से, n इज इक्वल टू, यस, 5 क्यूब माइनस 8, यस, n की वैल्यू प्लस 4, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। मैंने n प्लस 4 को लिखा n प्लस 8 माइनस 4। बच्चों n प्लस 8 क्या है, n प्लस 8 आई कैन राइट इट एज 5 क्यूब, तो मैं इसके बदले लिख दूंगा 5 क्यूब, और ये जो माइनस 4 है इसके बदले में लिखूंगा माइनस 5 प्लस 1, है ना। यहां से 5 कॉमन लिया, बचा q माइनस 1 प्लस 1 which is 5m plus 1 remainder, r is equal to 1। therefore n plus 4 is not divisible by 5। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन, तो मैं आगे समझो उसको पूरा। यस, n plus 4 is not divisible। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, n plus 8 तो डिविजिबल है भैया, n plus 12, तो n plus 12 को मैं लिख सकता हूं बच्चों n plus 8 plus 4। n plus 8 क्या है, n plus 8 तो डिविजिबल है, तो ये आ गया 5q plus 4, the remainder is 4। therefore n plus 12 is not divisible by 5। और लास्ट वाला n plus 16, n plus 16 को मैं लिख सकता हूं बच्चों n plus 8 plus 8। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n plus 8 की वैल्यू मुझे पता है ना, n plus 8 है 5q plus 8 which is nothing but 5q plus 5 plus 3, है ना। तो ये हो जाएगा 5 into q plus 1 plus 3 which is 5m plus 3। yes, remainder is 3। therefore n plus 16 is not divisible by 5। हाँ, ये हुआ n plus 8 की कहानी। ऐसे ही आपको n plus 12 और n plus 16 के भी केसेस सॉल्व करने होंगे, ठीक है, which I am leaving for you as homework। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आया। यस, यस सर। बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता, और अगर आया तो इसके लिए अगर आपको ऑप्शन अवेलेबल है तो चुपचाप से ऑप्शन सॉल्व करना, क्योंकि ये बहुत टाइम खा लेगा। तो इससे अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ सकता है क्या, हाँ ये आ सकता है, क्योंकि ये छोटा सा है। तो बोर्ड में भी ऑप्शंस होते हैं, हाँ, इंटरनल चॉइसेस रहेगा, इंटरनल चॉइसेस। ओके सर। वाले क्वेश्चन को डेफिनेटली आएगा इंटरनल चॉइस, तो इंटरनल चॉइस को आप सॉल्व कर लो, कोई वरी नहीं, ठीक है। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ इस साल भी सिलेबस रिड्यूस होने ही वाला है, और ये तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है ये इस साल भी रिड्यूस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपके ऑनलाइन क्लासेस और 3-4 महीना तो पक्का चलने वाले। ओके, तो मोस्टली सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा।
चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, प्रूव दैट एनी वन ऑफ 3 consecutive positive integers, 3 consecutive positive integers is divisible by 3. ध्यान देना, पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन था n, n+2, n+4, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? नहीं। देखो ना, n2 है तो 2, 4, 6, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? नहीं। 5, 7, 9, 100, 102, 104, दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला है। अब बोल रहा है प्रूव दैट 3 consecutive positive integers, मतलब एक के बाद एक, जैसे 2, 3, 4, 8, 9, 10, यस, 17, 18, 19, ऐसे 3 consecutive integers है। बोल रहे हैं इन 3 consecutive integers में से one and only one, सिर्फ एक 3 से डिविजिबल होगा। देखो ये वाला 3 से डिविजिबल है, देखो ये वाला 3 से डिविजिबल है, देखो ये वाला 3 से डिविजिबल है ना। 6, 7, 8, देखो ये वाला 3 से डिविजिबल है। अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हो तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से कोई एक मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होना ही चाहिए। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। और हमने तो एग्जाम, यस सर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं लिखूंगा लेट द 3 consecutive numbers, 3 consecutive numbers पॉजिटिव इंटीजर्स, बी एक n ले लेता हूं, दूसरा n+1 ले लेता हूं, चलेगा क्या? एक n लिया, एक n+1 लिया, एक n-1 ले लूं क्या? n-1 n से पहले आने वाला, एक मैंने लिया n, एक मैंने लिया n से पहले आने वाला कोई नंबर, और एक मैंने लिया n से बाद में आने वाला कोई नंबर। अच्छा ऐसे क्यों किया मैंने? हाँ ऐसे इसलिए किया, कोई टेंशन नहीं। यहाँ देखो फॉर एग्जांपल, एक नंबर लिया 2, एक लिया 2+1 3, और एक लिया 2-1 1, हो गया ना 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, बिल्कुल है ना। आप ऐसे भी ले सकते हो यार, n, n+1, n+2, ऐसे भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, चलो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी n, n+1 एंड n+2। ऐसे आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं और सेम टू सेम प्रूव करके दिखाना है। सेम टू सेम प्रूफ है, एग्जैक्ट सेम। जैसे मैं बोलूंगा लेट, सबसे पहले मैं बोलूंगा लेट n इज डिविजिबल बाय 3। अगर n 3 से डिविजिबल है तो कैन आई राइट n इज इक्वल टू 3q? वेरी गुड। तो n+1 क्या हो जाएगा? 3q + 1, रिमाइंडर इज 1, therefore it is not divisible। n+2 क्या हो जाएगा? 3q + 2, रिमाइंडर इज 2, r is equal to 1 and 2, therefore n+1 and n+2 is not divisible by 3। कौन डिविजिबल है? n is equal to 3q। दिस इज माय केस नंबर 1। ओके, मान लेते हैं केस नंबर 2 में कि n+1 is divisible by 3, तो कैन आई राइट n+1 is equal to 3q? ओके यस, पहला वाला n क्या हो जाएगा? 3q - 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3q - 3 + 2, -1 को मैंने लिखा -3 + 2, which is nothing but q - 1 + 2, which is 3m + 2। see, remainder is 2, तो n is not divisible, है ना। और एक है हमारे पास n+2, तो बच्चों n+2 क्या हो जाएगा? n+2 is equal to n+1 + 1। n+1 की वैल्यू तो मुझे पता है 3q + 1। see, the remainder is 1, therefore ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। यस, क्या ये एग्जाम में आ सकता है? हाँ, छोटा है ना, ये आ जाएगा, राइट। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि कॉन्सेप्ट क्या है। इस बारी मैं बोलता हूं लेट n+2 इज डिविजिबल बाय 3। अगर n+2 डिविजिबल है तो क्या मैं लिख सकता हूं n+2 = 3q? बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस लेने का सिर्फ एक रीजन है
कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और फिट हो जाए पूरा दिमाग के अंदर, है ना। और फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। आई वांट योर कॉन्सेप्ट, योर अंडरस्टैंडिंग टू बी क्लियर कि ये सब बकवास है, माना, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में मार्क्स तो पक्का आ जाए, है ना। n+2 डिविजिबल है तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 3q - 2। तो कैन आई राइट इट एज 3q - 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 × q - 1 + 1 which is 3m + 1। हाँ, n = 3m + 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1, नॉट डिविजिबल, है ना। अच्छा दूसरा क्या है n+1 ना, n+1, यस। तो n+1 को मैं लिख सकता हूं n+2 - 1, यस। n+2 इज नथिंग बट 3q - 1, सेम 3q - 3 + 2, ये हो जाएगा 3m + 2, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, hence not divisible। From the above three cases we can say that only one of the three consecutive positive integers is divisible by 3। इसमें से कोई एक ही सिर्फ 3 से डिविजिबल हो सकता है। और देखो यार, एग्जाम्पल से तो मतलब आराम से आप समझ लोगे, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, 13, 14, 15, सी सिर्फ ये डिविजिबल होगा 3 से। यस, 117, 118, 119 सिर्फ ये डिविजिबल है 3 से। ओनली वन नंबर आउट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव विल बी डिविजिबल। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन वो बोल रहे प्रूव करके बताओ, तो ये लो प्रूव करके बताओ। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? 100% क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग खुद से सॉल्व कर पाएंगे अभी इन सारी चीजों को? कम ऑन टेल मी। यस, अगर नेगेटिव इंटीजर आप लोगे तो उसमें भी, जैसे मान लो 3 कॉन्जिक्यूटिव -13, -14, -15, तो -15 इज डिविजिबल, है ना। -117, -118, -119, तो ये डिविजिबल, ठीक है। यस, नेगेटिव नंबर्स में भी ट्रू है, नो वरीज, ठीक है। अगला सवाल देखो तो जरा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। हाँ, हे भगवान, क्या लगा रखा है इन्होंने, ये डिविजिबल वो डिविजिबल, क्या करूं यार, मैं तो सिखा रहा हूं, मेरी गलती नहीं है, मुझे गाली मार के कुछ नहीं होगा, है ना। ध्यान देना अच्छे से, ओके। प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 6। याद करो, हमने n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 ये प्रूव किया था इफ n = ऑड नंबर। कैसे किया था? हमने बोला n = 1 डाल दो, n = 3 डाल दो, n = 5 डाल दो, यस। लेकिन वो मेथड एक्चुअली गलत है, एक्चुअली वो मेथड गलत है। क्या एग्जाम में उसका मार्क्स मिलेगा? 200% मिल जाएगा, आपके स्कूल एग्जाम्स में उसका मार्क्स मिल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको तो यार एक जनरल मेथड चाहिए, है ना। आप बोलोगे सर आपने 1, 3, 5 पे किया, सर 11 डाल के दिखाओ, तो मैं 11 डाल के दिखाऊंगा। फिर सिद्धेश को ना विश्वास ही नहीं होगा, सिद्धेश बोलेगा सर 13 डाल के दिखाओ, तो मैं बोलूंगा ये ले भाई, है ना। यस, फिर श्रेयांश बोलेगा सर मुझे तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा है, सर आप ना मुझे 27 डाल के दिखाओ, तो n = 27 डाल के कितना करूंगा भाई, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक जनरल मेथड बनाऊंगा कि ये देख, जनरल तुम कुछ भी ले, n की एक ऑड वैल्यू ले, होना चाहिए, यस। तो हमारे पास एक जनरल मेथड होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप चेक करो, आप यहाँ पे चेक करो बच्चों, चेक ये करो, चेक ये करो, n³ - n should be divisible by 6, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देता हूँ। लो n की कोई भी वैल्यू लो, n = 4 ले, ठीक है। तो n³ - n मतलब 4 का क्यूब -4 which is nothing but 64 - 4 which is 60। yes it is divisible by 6, है ना। yes, अच्छा चला, n की वैल्यू ले लो, n की वैल्यू ले लो 3, छोटे छोटे नंबर ले लो, ठीक है। मैं बोलूंगा n³ - n is 3 का क्यूब -3 which is 27 - 3
which is 24. Yes, this is also divisible by 6. तो बोलता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर आप ये मुझे प्रूव करके बताओ। तो यार ऐसा कब तक करोगे? वेरी डिफिकल्ट, राइट? है ना? तो क्या कोई जनरल मेथड है? हाँ है। अब इसका सॉल्यूशन बताता हूं यहाँ पे। अच्छा, एग्जांपल समझ में आया ना कि क्या बोलना चाहते हैं? वो बोलना चाहते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है, ये आप बता दो। What is the divisibility test of 6? 6 का divisibility test क्या होता है? Anybody? Yes? Divisibility test of 2 and 3. Sir, it should be divisible by 2 and 3 both Very good. to be divisible by 6. Absolutely. A number which is divisible by both 2 and 3 is divisible by 6. क्या ये सबको पता है? Yes, sir. क्लियर है ना? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम इस नंबर को लेंगे n क्यूब माइनस n। यस, कैन आई राइट दिस बच्चों एज n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू, इसमें से n कॉमन ले लूं क्या? बचेगा क्या? n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1। क्या ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1? यस, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। क्या सब लोगों को क्लियर है? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चों, इसको मैं लिखता हूँ n माइनस 1 पहले लिख दिया, फिर n लिखता हूँ और फिर n प्लस 1 लिखता हूँ। चलेगा? वेरी गुड। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस नंबर, है ना? These are three consecutive numbers, n minus 1, n and n plus 1 are three consecutive numbers। अब यार तीन consecutive नंबर में से एक नंबर तो इवन रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना? देखो, तीन consecutive नंबर 2 into 3 into 4, यस, या तो फिर 7 into 8 into 9। देयर आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इन तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में से एक तो डेफिनेटली इवन रहेगा, है ना? तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन है, राइट? सो इट शुड डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय 2। आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, देयरफॉर एट लीस्ट वन ऑफ देम ऐसे के ऐसे लिखना है सॉल्यूशन जैसे लिख के दे रहा हूं, ओके? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन, यस, एंड हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 से तो ये वाला नंबर डिविजिबल है। वेरी गुड, है ना? बाकी का सॉल्यूशन यहां लिख के दे रहा हूं, ओके? यहां से इधर कंटिन्यू करता हूं। नाउ have a look at these three numbers, n minus 1 plus n plus 1। क्या है यार ये? इन तीनों नंबर्स का एडिशन किया। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसा होता है? सपोज 117 नंबर है, 117, तो दिस प्लस दिस अगर 3 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो हमने तीनों नंबर को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मुझे मिलता है, देखो 1 से 1 कटा, मुझे मिलता है 3n। This number is also divisible by 3. Therefore, n cube minus n is divisible by 6। ये जो नंबर है ना, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, हाँ, और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। और therefore अभी हमने प्रूव भी किया बच्चों। यहाँ देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से एक तो 3 से डिविजिबल है। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से एक तो 3 से डिविजिबल है, राइट? तो ये है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो उसमें से एक तो 3 से डिविजिबल रहेगा। यस, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो।
है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी सारी वेराइटी ऑन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होती है खत्म, इसके बाद कुछ बचता नहीं। HCF LCM में मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़ दिए थे, वो मैं अभी सिखा दूंगा। बट क्या आपको ये सब अच्छे से समझ में आया? एवरीबॉडी कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सर एक जल्दी से लास्ट बार समझा दो। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, है ना। अच्छा क्या बोला सोहम? सोहम क्या बोला? सर वही लास्ट टाइम समझा दोगे, वो नहीं समझा। अच्छा ये पूरा क्वेश्चन नहीं समझा क्या? इज व्हाट यू सेइंग? नो सर, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया बट अच्छा बीच देख, में। ये नंबर है ना, ये नंबर है करेक्ट। ये नंबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ n-1 इंटू n इंटू n+1 करेक्ट। ये और ये एक ही है ना, ये और ये सेम है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। वेरी। अब ये नंबर है n-1 n और n+1, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है? एक के बाद एक आने वाले नंबर्स है। हाँ, एक मैंने n ले लिया लेट्स से 5, तो n+1 क्या हो जाएगा 6 और n-1 हो जाएगा 4, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना, इसमें से एक नंबर तो डेफिनेटली इवन रहेगा। एक नंबर, अरे यार नंबर इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, तो 3 नंबर में से एक तो डेफिनेटली इवन रहेगा, इधर का ऑड इधर का ऑड, तो बीच में का इवन। अगर इवन है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा, प्रोडक्ट है ना, तो 2 से डिविजिबल होगा बिल्कुल, है ना। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 शुड बी डिविजिबल बाय 2, तो दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 2। फाइन। अब ये 3 नंबर है देखो मेरे पास 4 5 6, इनका सम ले लो आप। इनका सम क्या होता है देखो, 4 + 6 10, 10 + 5 15, है ना। सम इज डिविजिबल बाय 3। ये देख मैंने तीनों का सम ले लिया और सम आया 3n के फॉर्म में। 3n मतलब क्या, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3n या 3q या 3m या 3 सोहम, कुछ भी, 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, या 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, राइट। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो, है ना। और हमने बोला अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ इज डिविजिबल बाय 6, तो बच्चा ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, तो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। समझ में सर आया? मतलब वो द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers will be divisible by 2 and sum by 3। सम नहीं बच्चा, सम नहीं, ठीक है। सम नहीं ले रहा हूं मैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम ले ही नहीं रहा हूं मैं। अच्छा मुझे बताओ, एक नंबर है 456, 456 ऐसा नंबर है, तो हम इसके डिजिट्स को उठाते हैं, डिजिट्स, राइट, डिजिट्स का सम लेते हैं, है कि नहीं। तो ये एक नंबर है, सी ये एक पूरा नंबर है, सिंगल नंबर, मैं इसके डिजिट्स को उठा रहा हूं, डिजिट्स को उठा रहा हूं और डिजिट्स का सम ले रहा हूं, या तो फिर यहां तक आ गए आप, यहां तक आ गए। यस, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इसके पहले का क्वेश्चन था वो एज इट इज छाप दो, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय, या ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया सोहम? पक्का? हाँ सर, एक बार सॉल्व करूंगा, मतलब अभी के लिए समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा कुछ क्वेश्चंस फटाफट से, है ना। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कम ऑन जल्दी से आंसर बताओ। 2n. Every even 2m. integer is of the form 2m. For some integer q, every odd integer is of the form of 2q plus 1। 2q plus 1. plus 1. Q plus 1. These questions in your exam as it is. Okay. If n square minus 1 is divisible by 8, then n is a, yes, Odd integer. Odd odd integer। integer. ठीक है, याद करके चले जाना, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आ गया, ऐसे, और ये क्वेश्चन नॉन एमसीक्यू में भी आ सकता है आपका, है ना। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए। ओके, HCF of 65 and 117 is expressible in the form like this.
देन द वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू बताओ। ओके, तो रिवीजन हो जाएगी हमारी HCF की। फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117। किसी ने बोला है क्या कौन सा मेथड यूज करना है? नहीं बोला, तो मैं कोई भी मेथड यूज कर लूंगा। 65 इज इक्वल टू 13 इंटू 5, यस, एंड 117 इज इक्वल टू 13 इंटू 9। तो इनका HCF क्या हो गया भैया? HCF हो गया 13। द HCF इज 13, है ना? एंड वो बोल रहा है, सी द HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, मतलब 13, मतलब आई कैन राइट 13 is equal to 65m minus 117. See, HCF is of the form 65m minus 117. Yes, very good. Yes, m की वैल्यू निकालना है, सो 13 117 इधर आके ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 65m। 65m is equal to 130, m is equal to 2, तो m की वैल्यू क्या है? 2। फाइन। अब ना पता है एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है बच्चों, इसी में सेम टाइप सेम वेराइटी। HCF of 65 and 17 is expressible in this form, तो बोलता है कि एक्सप्रेस करके बताओ और फिर HCF निकाल। खैर डोंट वरी अबाउट दैट क्वेश्चन, नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, फिर भी रिवीजन के वक्त सिखा दूंगा मैं। रिवीजन के वक्त सिखाऊं। क्या ये क्वेश्चन समझा? यस, HCF कैन बी रिटन एज 65m minus 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो HCF निकाला, 13 plus 117, sorry 13 is equal to 65m plus 117, so m की वैल्यू आती है 2। सिंपल एकदम। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Another important question for your school exams, ध्यान दो। The largest number which divides 70 and 125, एक लार्जेस्ट नंबर, बच्चों लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट, HCF निकालना है। जैसे ही ये वर्ड्स पढ़ोगे आप, लार्जेस्ट नंबर, मैक्सिमम समथिंग, ग्रेटेस्ट, मतलब HCF निकालना। लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving a remainder of 5 and 8 respectively is, एक ऐसा नंबर है जो इससे इसको, लेट द नंबर बी x नंबर है ना, तो बच्चों 70 को अगर मैं x से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 5, रिमाइंडर मुझे मिलता है 5। 125 को अगर मैं x से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर मिलता है 8। बोल रहा है x की वैल्यू निकालो, है ना? रिमाइंडर 5 मिलता है, रिमाइंडर 8 मिलता है ना? अब ध्यान देना, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वैसे तो बताने की भी जरूरत नहीं है, मैं मेथड बता सकता हूं सीधा सीधा, ओके, बट मैं चाहता हूं आपको समझ में आया हो क्या। देखो कोई भी नंबर ले लो, 70 डिवाइडेड बाय 13, है ना, 5 जा 65, रिमाइंडर आया 5, रिमाइंडर कितना है 5। यस, मतलब 13 70 को डिवाइड करता है क्या? नहीं करता। 17 को डिवाइड करता है क्या? नहीं करता डिवाइड, है ना? लेकिन 70 में से मैं रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दूं, 70 में से जो रिमाइंडर आ रहा है ना, जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है, ये एक्स्ट्रा बच गया ना, ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 65, तो ये 65 13 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यस, तो ये रिमाइंडर अगर मैं इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एग्जैक्ट डिविजिबल बन जाएगा नंबर, है ना? और ये 8 अगर मैं 125 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एग्जैक्ट डिविजिबल बन जाएगा, x से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर, हाँ कि नहीं? एवरीबॉडी यस, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे HCF किसका बच्चों? हम निकालेंगे HCF ऑफ 70 माइनस 5 और 125 माइनस 8 का। यस, देखो HCF लार्जेस्ट नंबर which divides this and this leaving a remainder 5 and 8, 5 and 8 रिमाइंडर रह रहा है,
तो मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो मैंने 5 और 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा? तो मैं HCF निकालूंगा 65 और 117 का, है ना, जो अभी अभी हमने निकाला था 13। सो योर आंसर इज बच्चों 13। बोलो, बात समझ में आई? क्यों Yes. 5 सब्ट्रैक्ट Yes, किया sir. मैंने, उससे Yes, sir. समझ में आया? क्योंकि रिमाइंडर 5 है, लेकिन अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो मैं HCF निकाल सकता हूं, है ना। अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं है तो HCF कैसे निकलेगा? राइट, फैक्टर होना चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर होने के लिए डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने बोला ओके, लार्जेस्ट नंबर डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग अ रिमाइंडर 5 एंड 8। तो 70 से 5 हटा दो 65, 125 से 8 हटा दो 117, उनका HCF निकालो। तो क्वेश्चन क्या है पता है? ये जो डेंजरस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, एक्चुअली क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117। यार दिस इज एक्चुअली दी। और सर अगर जैसे पूछते तो मैं तो 70 और 125 का निकाल देता। हाँ, 70 125 का आपको HCF मिलेगा ही नहीं, या जो भी मिलेगा, सॉरी मिलेगा नहीं मतलब मिलेगा 70। आप 70 का HCF निकालो, 70 का आएगा 7 इंटू 2 इंटू 5। 125 का निकालो, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो आप 5 लिख करके आओगे, है ना। 5 ऑप्शन में ही नहीं है, देखो वहां पे। लेकिन अगर मैं होता तो मैं क्या करता पता है? मैं यहाँ पे 5 भी ऑप्शन में देता, हाँ ठीक है। सो आप 5 मार्क करके आ जाते और आपको मिलता अंडा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझा क्या? 5 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि बोल रहा है कि बच्चा जब मैं HCF हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आता है। तो यार रिमाइंडर 5 आता है मतलब डिविजिबल नहीं है ना, फैक्टर नहीं है। पहले फैक्टर तो बनाओ, पहले इसमें से 5 हटा दो, इसमें से 8 हटा दो, फैक्टर बनाओ, फिर डिविजिबल। चलो अब क्लियर है? पक्का पक्का 100%? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और Yes, यहाँ sir. पर आपका चैप्टर होता है खत्म, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। मैं एक भी वैरायटी नहीं छोड़ूंगा, तो वो सिखा दो। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़े थे फर्स्ट सेशन में, तो फर्स्ट सेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स ध्यान देना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ओके, सो बिफोर दैट कुछ चीज बता देता हूँ। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको GCD भी बोलते हैं, यस, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसे वर्ड्स दिखे, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, राइट, तो समझ लेना HCF निकालना है। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक, छोटी सी ट्रिक। क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तो कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझा है HCF और LCM का, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर निकालू क्या, HCF निकालो LCM निकालो। सॉल्व करने आता है लेकिन समझ नहीं आता निकालना क्या है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसे शब्द दिखाई दे तो चुपचाप से HCF निकाल के आना। और LCM, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई दे, लीस्ट, मिनिमम, लोएस्ट, है ना, तो LCM निकाल के आ जाना, ठीक है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ये वर्ड्स दिखाई देंगे, ओके। इसके साथ साथ थोड़ा सा दिमाग लगाना, यस, एंड थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो फिर तो मजा ही कुछ और है ना। अच्छा ध्यान दे, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि करना है, ओके। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter, okay. What is the minimum distance? मिनिमम क्या निकालोगे? यस, LCM. LCM. बिना सोचे समझे LCM चिपका के आ जाना। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? Yes, क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूं। 3 लोग यहां से शुरुआत करते हैं चलने को, ओके।
1 2 है ना। इसका स्टेप है 40 सेंटीमीटर, एक स्टेप 40 सेंटीमीटर का है, दो स्टेप 80 सेंटीमीटर, थर्ड स्टेप डालेगा 120 सेंटीमीटर, नेक्स्ट स्टेप डालेगा 160 सेंटीमीटर, नेक्स्ट और एक कदम डालेगा 200 सेंटीमीटर, ऐसे चलता जाएगा। चल रहा है 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 ना। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। दूसरे वाले का देखो 42 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, करेक्ट है ना। 124 सही है ना। 126 आएगा क्या? हाउ मच इज दिस? 6 आएगा सर। यस 42 है ना 126 या 6 126 सेंटीमीटर, ऐसे करते 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 जाएगा। और तीसरे का है 45, सो 45 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते जाएगा। इनका डिस्टेंस इक्वल कब आएगा? मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट ऐसे ही पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। एलसीएम होता क्या है? ये देखो, ये है इसके मल्टीपल्स, हाँ ये है इसके मल्टीपल्स, और ये है इसके मल्टीपल्स। सेम कब होगा, है ना। हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सेम नंबर आना चाहिए। तो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भाई एलसीएम? 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो तो जरा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40। 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 45 को देखो जरा, 45 हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू। लेट्स फाइंड द एलसीएम। वंस अगेन रिवीजन हो रहा है यार एलसीएम का, ओके। चलो, क्या कॉमन है तीनों में? तीनों में तीनों में तीनों में मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यस सर, कुछ भी कॉमन कॉमन नहीं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये दोनों 2 मिला करके एक 2 आएगा। अच्छा, ये दोनों 3 मिला करके बच्चों एक 3 आएगा। अच्छा, है ना। ये दोनों 5 मिला करके एक 5 आएगा। वेरी गुड। बाकी को जोड़ी नहीं है, तो बाकी लोग एज इट इज अकेले अकेले आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज द एलसीएम। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। यस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 7, 7 3 जा 21 इंटू 12, 12 0 जा 0, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर। यस, बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? दैट इज नथिंग बट 25-20 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद तीनों मतलब सेम डिस्टेंस पे आते हैं, सेम डिस्टेंस कवर होगा तीनों का। क्या सबको समझ में आया क्या किया? यस सर। एवरीबॉडी। अब देखो यार, इस मेथड से इतना लंबा तो जा नहीं सकते थे हम। 2520 तक कौन जाएगा, है ना। सो एलसीएम निकालना था। मैंने मीनिंग भी समझाया क्वेश्चन का, मिनिमम वर्ड दिखा, चिपका देना। आ जाओ यहाँ पे, देखो तो जरा। ओ सॉरी, ये क्या हो रहा है? 1 सेकेंड। Okay, a sweet seller has 420 Kaju Barfis and 130 Badam Barfis. Okay, she wants to stack them in such a way that each stack has the same number. काजू बर्फी है और बादाम बर्फी है, एक के ऊपर एक स्टैक करना है, एक के ऊपर एक स्टैक करना है। यस, ताकि ऐसे स्टैक करना है बच्चों कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज रहे। मतलब ये देखो, ये मैंने स्टैक कर दी बर्फीज एक के ऊपर एक। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 होनी चाहिए ऐसे, राइट। ऐसे 6 का स्टैक बनाना पड़ेगा, राइट। इक्वल नंबर इन ईच स्टैक, ऐसे बोलो, ठीक है। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया फॉर द ट्रे। हाँ,
कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बोला थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। लीस्ट शब्द आया है, लीस्ट शब्द आया है, लेकिन ध्यान से, ओके। व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। देखो यार, ये है ट्रे, है ना, ये है ट्रे। ट्रे का कम से कम एरिया ऑक्यूपाई होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन दिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर of burfis that can be placed in each stack। देखो, अगर एरिया कम से कम करना है तो एक के ऊपर एक ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम ऑन, है ना। अगर कम एरिया चाहिए तो स्टैकिंग मैक्सिमम करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट शी शुड कीप सो दैट यस कम से कम एरिया लगे। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, एलसीएम की एचसीएफ? HCF। यस बच्चा लोग, HCF। ज्यादा से ज्यादा बर्फी एक के ऊपर एक लगेगी तब कम से कम एरिया आएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा है ना, वो क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट शुड बी स्टैक्ड वन अबव द अदर सो दैट लीस्ट एरिया इज ऑक्यूपाइड। सो ये लीस्ट वर्ड से कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन भी समझना जरूरी है ना। तो हमको निकालना क्या है, हम निकालेंगे HCF ऑफ 420 एंड 130। ये आपका होमवर्क, निकाल लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ, ओके। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same। ये स्पोर्ट्स फील्ड, ये यहाँ पे है हमारी सोनिया, यस, और ये है रवि, ओके। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं पूरा घूम के आने के लिए, यहां से दोबारा यहाँ पे आने के लिए 18 मिनट्स लगते हैं। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स सर HCF, हाँ HCF निकालना है दोनों का। LCM। सॉरी LCM। हाँ, okay. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ना maximum word, ना minimum word, ना कुछ। अब थोड़ा सा इंग्लिश का यूज कर रहा है। After how many minutes? मिनिमम कितने टाइम के बाद वो वापस मिलेंगे? 36 पहली बार वापस कब मिलेंगे? देखो, फॉर एग्जांपल 18 है तो सोनिया का एक राउंड कंप्लीट होगा 18 मिनट्स के बाद, दूसरा राउंड कंप्लीट होगा 36 मिनट्स के बाद, तीसरा राउंड कंप्लीट होगा 54 मिनट्स के बाद, एंड सो ऑन सो फोर्थ। रवि को ले लो, रवि का 12 मिनट्स लगता है तो पहला राउंड कंप्लीट होगा 12 मिनट्स के बाद, दूसरा राउंड कंप्लीट होगा 24 मिनट्स के बाद, और तीसरा राउंड कंप्लीट होगा 36 मिनट्स के बाद। तो 36 मिनट्स के बाद दोनों यहाँ पे मिलने वाले हैं, हाँ कि नहीं? आफ्टर 36 मिनट्स। लेकिन देखो 36 मिनट्स में सोनिया के 2 ही राउंड हुए हैं अभी तक, लेकिन रवि के तो 3 राउंड हो गए, क्योंकि रवि फास्ट है ना, रवि फटाफट। तो 3 राउंड के बाद रवि यहाँ मिलेगा सोनिया से और सोनिया को बोलेगा अरे रे तेरे तो 2 ही राउंड हुए, है ना। सो हु इज फास्टर? रवि। कर क्या रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा कि मिनिमम कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे, मिनिमम मतलब एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेना इसका, एलसीएम। ये तो मैंने कन्वेंशनली निकाल के बताया समझाने के लिए, ओके। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 18 का, यस 18 का आएगा 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3, और क्या है दूसरा नंबर? 12 का आएगा 2 into 2 into, so the LCM is 2, 3, ये 3 बेचारा और ये 2 बेचारा,
3 बेचारा 2 बेचारा, देखो 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36. So after 36 minutes they will meet again. तो जरूरी नहीं है कि आपको मिनिमम मैक्सिमम वर्ड हमेशा दिखाई दे, वो तो मैंने एक ट्रिक बताई कि समझे, लेकिन उसमें से ऐसे फंस नहीं जाना आप लोग, इसलिए मैंने तीनों वैरायटी का क्वेश्चन लिया कि जिसमें सीधा सीधा वर्ड आपको दिख रहा है, मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो खटाक से। दूसरा, इसमें आपको लीस्ट एरिया दिखा, लेकिन क्वेश्चन एरिया का है ही नहीं, क्वेश्चन है कितने ऊपर ऊपर लगाना है, तो मैक्सिमम कितने लगाना है, तो HCF का क्वेश्चन हो गया। और ये हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया, ना मिनिमम ना मैक्सिमम ना लीस्ट ना कुछ ना कुछ ना, है ना। तो मिनिमम कितने टाइम के बाद वो वापस मिलेंगे, राइट। पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट्स। चलो, एवरीबडी क्लियर विद दिस? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। सो वन लास्ट क्वेश्चन दैट इज रिमेनिंग इज दिस। क्या बोल रहे हैं देखो, consider the number 4 raised to n where n is a natural number. Check whether there is a value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0. Excuse me. बच्चों, 4 raised to 0 is 1, 4 raised to 1 is 4, 4 raised to 2 is 16, 4 raised to 3 is 64, 4 raised to 4, 4 raised to 5, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बोल रहा है चेक करो क्या वो नंबर 0 पे कभी एंड होगा, यूनिट्स प्लेस पे कभी 0 आ सकता है क्या, डिजिट 0, 4 raised to n ends with 0 or not, ये चेक करना है। चेक वेदर 4 raised to n ends with a 0 or not। अब कब तक करोगे, कब तक करते बैठोगे, है ना। यस, यश बोलेगा सर 4 raised to 15 करके बताओ, मैं बोलूंगा भैया माफ कर दे, कैलकुलेटर लेके आ जा, है ना, या खुद से चेक करो। कोई बोलेगा सर 4 raised to 25 हो सकता है क्या, कोई कुछ पूछेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां देखो सॉल्यूशन में क्या चाहिए हमको, 4 raised to n चाहिए, वेरी गुड, है ना। तो 4 raised to n को मैं लिखता हूं 2 into 2 raised to n। अच्छा, मैं ना ऊपर में थोड़ी सी जगह छोड़ता हूं कुछ लिखने के लिए, या यहां से स्टार्ट करते हैं। 4 raised to n को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 into 2 raised to n, प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने उसको, है ना। अब देखो Yes, sir. कोई भी नंबर, यहां मैं लिखता हूं इफ अ डिजिट, इफ अ नंबर ends with 0 then it should be divisible by 5, it should be divisible by 5, हाँ कि नहीं। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो 5 से तो पक्का डिविजिबल रहेगा, वेरी गुड। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है, yes, it should be divisible by 5, therefore it should have at least 1 5 in its prime factors. It should have 5 as its prime factor, अच्छा कोई भी नंबर लो, चलो नंबर लो 40, है ना। सो 2 into 5, देखो 0 पे एंड हुआ तो उसके प्राइम फैक्टर में एक 5 तो आता ही है। यस, टेक एनी नंबर यार, 20, सो 2 into 5 100, यस, तो ये हो जाएगा 25 into 2 into 2 which is 5 into 5 into 2 into 2। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में एक 5 तो आता ही आता है। यस, 4 raised to n has does not have 5 as its prime factor, yes, therefore 4 raised to n cannot end with 0, simple।
क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी? यस। अच्छा Yes, एक sir. और यही है सिंपल, वापस पूरा के पूरा चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो मैं लिखूंगा 6 रेज टू n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू n। वेरी गुड। और पूरा के पूरा एज इट इज छाप देना। क्या छापेंगे हम लोग एज इट इज? ये सॉरी शॉर्टकट में कर रहा हूं मैं। ओके yes solution, if a number ends with 0 then it should be divisible by 5, therefore it should have 5 as its prime factor। 6 raised to n is equal to 2 into 3 raised to n। yes, it 6 raised to n does not have 5 as its prime factor, therefore 6 raised to n cannot end with cannot end with a 0, है ना। यहां होता है आपका पूरा के पूरा चैप्टर का दी एंड, एंड आई बिलीव, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के वक्त कुछ भी डाउट आता है तो डाउट पूछो। क्लियर है सब लोगों को?